بلیٹن کے آغاز میں ایک ایسی خبر آپ تک پہنچائیں گے جو آپ کو بھی افسردہ کر دے گی۔ لوگ مرے چاہے کریں فاقے، حکومت نے عوام کی جیب پر ڈال دیا ہے ڈاکہ۔ عوام کی جیب سے مزید 60 ارب روپے نکالنے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ نیپرا نے بجلی 4 روپے 74 پیسے فی یونٹ مزید مہنگی کر دی ہے۔ بجلی اکتوبر کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مہنگی کی گئی ہے۔ عوام کو بجلی کا ایک اور جھٹکا لگا دیا گیا ہے۔ لوگ مرے چاہے کرے فاقہ، حکومت نے عوام کی جیب پر ڈاکہ ڈال دیا ہے۔ عوام کی جیب سے مزید 60 ارب روپے نکالنے کی تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ نیپرا نے بجلی 4 روپے 74 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی ہے۔ بجلی اکتوبر کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مہنگی کی گئی ہے۔ جی آپ کو بتاتے چلیں کہ بجلی مہنگی ہونے سے عام آدمی کی جیب پر مزید اضافی بوجھ پڑے گا، اور اس بار بتایا گیا ہے کہ اکتوبر کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں یہ اضافہ کیا گیا ہے۔ غریب آدمی جو کہ پہلے ہی مہنگائی کے بوجھ کے تلے دب چکا ہے، ہر چیز مہنگی ہونے پر دہائیاں دیتا دکھائی دیتا ہے کہ تقریباً تمام چیزیں جو ہے ان کی قیمتوں میں اضافہ روکا جائے، لیکن اب پھر سے غریب کی جیب پر مزید 60 ارب روپے نکالنے کی تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ نیپرا نے بجلی 4 روپے 74 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی ہے۔ بجلی اکتوبر کی ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی گئی ہے۔ ہمیں جوائن کیا اویس قیانی نے۔ اویس بتائے گا کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس مزید اس حوالے سے؟ 4 روپے 74 پیسے فی یونٹ جو ہے بجلی مزید جو ہے مہنگی کرنے کی منظوری دے دی ہے نیپرا کی طرف سے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اکتوبر کے مہینے میں جو ہے اس کے مد میں جو ہے بجلی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مہنگی کی گئی ہے۔ 60 ارب روپے سے زائد اضافی بہت صارفین پر پڑے گا۔ دسمبر میں کے بلوں میں جو ہے یہ اضافی رقم جو ہے وہ صارفین سے وصول کی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، اویس ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ نے اس حوالے سے پیش کیا۔ آٹا مہنگا، چینی مہنگی، مہنگی ہو گئی چائے، خواجہ سراؤں کی بھی ہائے ہائے۔ بہاول نگر میں مہنگائی سے پریشان خواتین اور خواجہ سرا میدان میں آ گئے ہیں۔ حکومت کے خلاف خوب نعرے بازی کی گئی۔ قاسم علی شیخ نے رپورٹ تیار کیا ہے، یہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ بہاول نگر میں خواتین اور خواجہ سرا بھی مہنگائی کے خلاف سڑکوں پر آ گئے۔ خواجہ سراؤں کا کہنا تھا کہ ایک طرف مہنگائی ہے اور دوسری طرف بے روزگاری، اب تو روزی کمانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ بہت مہنگائی ہو چکی ہے، پاکستان ڈوب چکا ہے۔ میری نسلیں آنے والی کیا سوچیں گی کہ ایسا پاکستان ہمیں نہیں چاہیے، کیونکہ جو خواجہ سرا ہیں وہ گھروں میں جا جا کے اپنی روزی کماتے ہیں اور لمبی عمر کی دعائیں دیتی ہیں۔ ان کا کیا قصور ہے؟ یہ تو ایک اللہ کی مخلوق ہے نا، ان کو حق ادا کرنا چاہیے۔ مہنگائی سے ستائی خواتین اور خواجہ سراؤں نے کمرشل کالج چوک سے ڈی سی آفس تک احتجاجی ریلی نکالی۔ شرکاء نے آٹا مہنگا، تیل مہنگا، گھی مہنگا ہونے کے نعرے لگائے۔ آسیہ جی بہاول نگر سے، ساڈا جو روزگار ہے سب روزگار بند ہو گئے ہیں، اس لیے ہمیں آئے ڈی پی او دفتر آئے ہیں اور ہمارا روزگار ہونا چاہیے، اور جو پولیس والے یہ ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں۔ میڈم نرگس فروخ آباد سے، ٹھیک ہے، ہمارا کاروبار بند ہے، مہنگائی اتنی پڑ گئی ہے، لوگ ہمیں کچھ دیتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، نہ کوئی بھیک دیتا ہے، نہ کوئی کچھ مانگنے جاتے ہیں، اگو کھجل خواری کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، پولیس والے کرتے ہیں، سارے ہمیں کوئی فنکشن نہیں کرنے دیتے۔ خواجہ سراؤں کے گرو کا کہنا تھا کہ اب تو مہنگائی کی وجہ سے لوگ بھیک بھی نہیں دیتے، ہمارے ساتھی فاقہ کشی پر مجبور ہیں، حکومت کچھ تو خیال کرے۔ خواجہ سراؤں کا مہنگائی کے خلاف ڈانس اور سر پیٹ کر احتجاج کرنا حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ قاسم علی شیخ، روہی، بہاول نگر۔ ملتان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور ڈالر کی قیمت سے جنوبی پنجاب میں دھاگے کی انڈسٹری بھی متاثر ہوئی ہے۔ صدر جان ایسوسی ایشن شیخ حامد کہتے ہیں کہ ڈالر بڑھنے سے بیشتر پاور لومز بند ہو چکی ہیں۔ مزید جانتے ہیں جنید انور سے۔ جی جنید بتائیے۔ جی بالکل، ڈالر کے اتار چڑھاؤ سے جہاں تمام شعبے جو ہے وہ مسائل میں گھرے دکھائی دیتے ہیں، وہیں یارن انڈسٹری جو دھاگے کی انڈسٹری ہے وہ بھی ڈالر کے اتار چڑھاؤ سے جو ہے وہ اس ٹائم جو ہے مشکلات کا شکار ہے۔ اس وقت صدر یارن انڈسٹریز کے حوالے سے شیخ حامد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ شیخ صاحب، کس طرح دیکھتے ہیں کہ ڈالر کے اتار چڑھاؤ سے جو دھاگے کی انڈسٹری ہے خاص طور پر، اس میں کیا کیا مسائل جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں؟ ہر چیز ڈالر مہنگائی کے اوپر متاثر ہو رہی ہے، بجلی، گیس، ہر چیز اس کے اوپر ہی آ رہی ہے افیکٹڈ۔ اور دھاگے کی جو فیلڈ ہے وہ یعنی کہ یان کی فیلڈ ہے ہماری، اور اس میں جب پاور لومز والوں کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے۔ پاور لومز والے بیچارے بجلی کا بل سے ایک تو گھبرائے کھڑے ہیں، ایک ان کو جو ہے نا مہنگائی نے مارا ہوا ہے، تیسرا وہ روز آئے دن ڈالر ایک مہنگائی کا ایسا نیا جن پیدا کر دیا جاتا ہے کہ ڈیلی بیس پر جو ہے نا مقصد ہے اس میں ہمیں لاسز آ رہے ہیں، اور پاور لومز ایسوسی ایشن والے بیچارے بہت تنگ ہیں۔
उनको कपड़े की कॉस्ट भी पूरी करनी मुसीबत बनी हुई है। बिल्कुल ये शेख हामिद है, यार्न इंडस्ट्री से वाबस्ता है और उनकी यूनियन के अहदेदार भी हैं। उनका कहना है कि इस टाइम डॉलर के उतार चढ़ाव से जो कपड़े की लागत है, जो धागे से कपड़ा बनाया जाता है, उसकी जो लागत है वो भी पूरी नहीं हो रही, जिसकी वजह से बेशतर जो पावर लूम्स हैं वो भी बंद हो चुके हैं। और उसके साथ साथ पावर लूम से जो मजदूर हैं, जो दिहाड़ीदार तबका है। सही जुनैद अनवर, आपका शुक्रिया। जनूबी पंजाब का शहर मुल्तान बन गया मसाइलिस्तान। गला गोदाम चौक से चौक शाहबाज तक सड़क टूट फूट का शिकार है। मिट्टी और धूल उड़ने से ताजिर और इलाका मकीन शदीद परेशान हैं। इब्राहिम खान की रिपोर्ट देखिए। सुल्तान शहर के गला गोदाम चौक से लेकर चौकशाबाज तक सड़क टूट फूट का शिकार है। इंतजामिया ने पाइपलाइन डालने के बाद काम अधूरा छोड़ दिया। ताजिरों और इलाका मकीनों की मुश्किलात बढ़ गईं, जबकि ट्रैफिक जाम और हादसात भी मामूल बन गए। इतने परेशान है नहीं रोड तो इन्हें को बेहतर आई, इन्हें को न पट्टे ना वो बेहतर आई, पट कितने होने को न बने न कोई बंदा ही क्या नहीं पड़ना वाला। ताजिरों का कहना था कि मट्टी और धूल के बायस वो सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। सारे दिन इधर हम काम करते हैं और इसी जो मट्टी है सामने चौक पे से मट्टी उठती आती है, ये सारी जो ट्राली ले जाते हैं, इनसे जो बराए मेहरबानी ये कह जाए रात के टाइम मट्टी उठाएं। जिन के टाइम जो मट्टी उठाते हैं वो मट्टी से ट्राली आती है, वो हमारे मुंह के अंदर नाक के अंदर और ये हमारे गले के अंदर बीमारी हो गई है। हम कमाने से भी परेशान और बीमारी से भी परेशान। ताजिरों ने इंतजामिया से सड़क की असरनो तामीर का मुतालबा किया है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। इंतजामिया की नाअहली, जतोई का वाहिद स्पोर्ट्स स्टेडियम फॉल ना हो सका। ग्राउंड बाउंड्री को ताले लगाकर बंद कर दिया गया है। शहरी खेलों से महरूम है, जबकि स्टेडियम में आवारा कुत्तों ने डेरे लगा लिए हैं। इमरान सईदी की रिपोर्ट देखिए। जतोई में नून लीग के दौरे हुकूमत में स्पोर्ट्स स्टेडियम मंसूबे का इफ्तिताह किया गया था। 4 दीवारी, ग्रासी प्लॉट और कॉम्प्लेक्स की तामीर मुकम्मल की गई। शायकीन के बैठने के लिए नशिस्तें भी बना दी गईं, लेकिन इंतजामिया और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की गफलत के बायस ताहाल स्टेडियम फाल न हो सका। ताला लगा हुआ होता है तो ये इसके अंदर जो है वो कुत्ते घूम रहे होते हैं। खेलने के लिए यहाँ पर कोई निजाम भी नहीं है, इसको फाल किया जाए। बहरहाल हमने इस हिसाब से पिछले दिनों रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने परमिशन हमें दी थी। हमने एक तो बार मरतबा खेलने दिया था, फिर हमें ठेकेदार साहब ने अंदर नहीं आने दिया। चौकीदार न होने के बायस आवारा कुत्तों ने स्टेडियम में डेरे लगा लिए। शहरियों ने वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। 4 साल का अरसा जो है तकरीबन गुजर चुका है, अभी तक ये नामुकम्मल है और इसको नौजवान खिलाड़ियों के लिए जो अभी तक फाल नहीं किया गया। तो हमारी वज़ीर पंजाब से और आला हुकाम से ये अपील है कि इस स्टेडियम को जो फौरी तौर पर फाल किया जाए, ताकि नौजवान यहाँ पर अपनी स्पोर्ट्स जो है वो एक्टिविटी जारी रख सके। खिलाड़ियों का कहना है कि वो खेलने आते हैं, ताले देखकर मायूस लौट जाते हैं। जहां ग्राउंड आबाद होते हैं वहां अस्पताल वीरान होते हैं। जतोई के खिलाड़ियों ने हुकूमत से स्पोर्ट्स स्टेडियम को जल्द फाल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन सादिर खान के साथ इमरान सईदी, रोही, जतोई। जहांगीर तरीन से चेयरमैन मार्केट कमेटी कहरोड़ पक्का हाजी राव इमरान ने मुलाकात की है। सदर पीटीआई धनोत राना रफाकत इसहाक, राना मोहम्मद शाहिद एडवोकेट भी मुलाकात में शामिल थे। अंजुमन ताजरान धनोत के नौमंतखब अहदेदारान सदर डॉक्टर हनीफ भोरी भी इस मौका पर उनके साथ मौजूद थे। जनरल सेक्रेटरी मोहसिन रजा और दीगर अहदेदारान ने भी मुलाकात में शिरकत की है। जहांगीर तरीन की अंजुमन ताजरान के अहदेदारान को इलेक्शन में शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद। धनोत की बुनियादी मसाइल के हल में अपने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी करवाई गई। खातीन डिग्री कॉलेज के कयाम और सीवरेज मसाइल के हल के लिए जहांगीर तरीन का शुक्रिया भी अदा किया गया है। महकमा औकाफ की जानिब से कुरान महल तामीर करने का मंसूबा ताखीर का शिकार है। महकमा औकाफ का शहीद कुरान पाक की हिफाजत के लिए कुरान महल तामीर करने का ऐलान 2 साल गुजर जाने के बाद भी मंसूबा ताखीर का शिकार है। कुरान महल की तामीर के लिए मंजूर करदा 80 लाख के फंड्स भी जारी ना हो सके। महकमे की जानिब से कुरान महल तामीर के लिए जगह भी मुख्तस नहीं की जा सकी है। और मियांवाली के बासियों के लिए अच्छी खबर है कि चेयरमैन कायमा कमेटी बराए दिफा MNA अमजद अली खान कहते हैं वजीर आजम दौरा मियांवाली के दौरान मेगा प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखेंगे। अख्तर मजाज की रिपोर्ट देखिए। वजीर आजम इमरान खान के द्वारा मियांवाली की तैयारियां अरूज पर हैं। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए दिफा MNA अमजद अली खान ने बताया कि वजीर आजम मियांवाली बालकसर रोड, MM रोड, DHU अस्पताल में 250 बेड के लिए अलग इमारत, किडनी सेंटर और दिल के वार्ड का भी संग बुनियाद रखेंगे। फिर मियांवाली शहर के लिए ना सबसे बड़ी जो बात है वो है आपके लिए DHQ के अंदर जो है उसकी अपग्रेडेशन है, उसके अंदर
250 बेड्स हैं, जिसने इस शहरियों को, जिसमें आपके दिल के अमराज के लिए, फिर आपके किडनी के अमराज के लिए, फिर इसी तरह देखें मियां वाली यूनिवर्सिटी है जिसको मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अब तकमील की तरफ बढ़ गई है। चेयरमैन कैमरा कमेटी बराए दिफा MNA अमजद अली खान ने बताया कि कैप्टन मुबीन शहीद अंडरपास के लिए 5 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। निकासी आपके टेक्निकल इश्यूज हैं जिन्हें जल्द हल कर लिया जाएगा। ये एक इशू है, इसके लिए भी पैसे 5 करोड़ रुपए जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें दिए हैं, तो चूंकि उसमें कुछ टेक्निकल चीजें हैं जिसके लिए डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं और वो पैसे आ चुके हैं, लेकिन टेक्निकल वजूहात की बिना पे उसकी फिजिबिलिटी और चीजें जो है ना वो फाइनल प्रोसेस में। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आजम इमरान खान का दौरा मियां वाली तारीखी होगा। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। खबर है बहावलनगर से, जहां पर डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत पोलियो मुहिम के इंतजाम का जायजा लिया गया। इजलास में मुतालिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद वसीम का कहना था कि वालिदैन बच्चों के पोलियो से बचाव की हिफाजती वैक्सीन पिलवाएं। 13 से 17 दिसंबर के दौरान पोलियो मुहिम जारी रहेगी, जबकि मुहिम में ब्रीफिंग के दौरान पोलियो टीमें घर घर जाकर पोलियो के कतरे भी पिलाएंगे। जिला भर के 5,16,000 से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। मजमूई तौर पर जिला भर में 2035 टीमें फ्राई सर अंजाम देंगी। 26 फिक्स्ड, 1,828 मोबाइल और 81 ट्रांजिट टीमें शामिल हैं। जिला खानेवाल में 5 रोजा पोलियो मुहिम का आगाज 13 दिसंबर से होगा। डिप्टी कमिश्नर आगा जहीराबाद शिराजी की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो इजलास हुआ है। सीओ हेल्थ डॉक्टर अब्दुल मजीद भट्टी, DHO समेत दीगर ऑफिसर्स ने भी शिरकत की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि अफसरान पोलियो के खात्मे के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतें वक्फ कर दें। मुहिम के दौरान किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुहिम के लिए हेल्थ वर्कर्स की तरबियत में कोई कसर न उठाए रखी जाएगी। कमिश्नर जनरल सोशल सिक्योरिटी डॉक्टर सैयद बिलाल हैदर शाह का दौरा तौंसा। सैयद बिलाल हैदर शाह ने ज़ेर तामीर कैंसर और सोशल सिक्योरिटी अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने काम का जायजा लिया, जबकि काम के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। डायरेक्टर जनरल सोशल सिक्योरिटी बाबर अब्बास, मेडिकल एडवाइजर फारूक सुल्तान टीपू भी उनके हमरा मौजूद थे। डिप्टी डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी शौकत खान कैसरानी, वज़ीर आला शिकायत सेल के इंचार्ज अब्दुल सलाम बुज़दार भी मौजूद थे। सैयद बिलाल अब्बास ने काम का जायजा लिया और बरवक्त मुकम्मल करने की हिदायत की। कमिश्नर जनरल सोशल सिक्योरिटी ने ज़ेर तामीर इमारत में मटीरियल का मुआयना भी किया। हादसात के दौरान तालिबात खुद को और दूसरों को किस तरह से महफूज रखें, इस हवाले से गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल विलायताबाद नंबर 2 मुल्तान में सिविल डिफेंस ने तालिबात को ट्रेनिंग दी है। इस दौरान तालिबात को हिफाजत के मुख्तलिफ तरीके बताए और सिखाए भी गए। महकमा सिविल डिफेंस मुल्तान तालिबात को ट्रेनिंग देने के लिए सरगर्म। सरकारी स्कूलों में बच्चों को किसी भी हादसे से महफूज रखने के लिए ट्रेनिंग दी जाने लगी। इस सिलसिले में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल विलायताबाद नंबर 2 में तालिबात को ट्रेनिंग दी गई। इंस्ट्रक्टर इकरा ने तालिबात को पहले लेक्चर दिया और फिर अमली तौर पे खुद को महफूज रखने के तरीके बताए। बेटा, ये आपके सामने एक फायर एक्सटिंग्विशर पड़ा हुआ है, DCP ड्राई केमिकल पाउडर। आपको बताया था मैंने ड्राई केमिकल पाउडर के बारे में। ट्रेनिंग में तालिबात को बताया गया कि जलजले, धमाके, आग लगने समेत किसी भी हादसे की सूरत में लड़कियां वहां से किस तरह निकल सकती हैं और दूसरों को किस तरह महफूज रख सकती हैं। हमें बहुत कुछ चीज़ों की ट्रेनिंग दी कि मैन मेड डिजास्टर कैसे होते हैं और फायर के बारे में बताया कि अगर आग लग जाए तो कैसे दूसरों की मदद की जाए, अपनी जान बचानी चाहिए और दूसरों की मदद कैसे करनी चाहिए। और इस तरीके से हमने आज को सिविल डिफेंस के बारे में बहुत सी ट्रेनिंग जान ली है, हमें बहुत सी चीज़ों का पता चल गया। सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग लेने वाली तालिबात का कहना था कि इससे इन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है। भगदड़ में भी खुद को महफूज रखने का तरीका बताया गया है। ऐसी ट्रेनिंग से खुद एतमादी में इजाफा होता है। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे पर नैब हुकाम ने मुल्तान में वॉक का एहतमाम किया। सिविल सोसाइटी के अरकान, तलबा और सरकारी अफसरान मुलाजमीन ने वॉक में शिरकत की है। रमा साल नैब की कार्रवाइयों की तफसीलात भी जारी कर दी गई हैं। यासिर मजीद की रिपोर्ट देखिए।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज करप्शन के खिलाफ आगाही के लिए आलमी दिन मनाया जा रहा है। नैब हुकाम ने इस दिन की मुनासबत से आर्ट्स काउंसिल मुल्तान से वाक का एहतमाम किया। डीजी नैब मुल्तान नोमान असलम का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि वाक का मकसद अवाम में करप्शन के खिलाफ आगाही पैदा करना है ताकि मुल्क को करप्शन फ्री बनाया जा सके। हम सब जो है इस जंग में जो करप्शन के अगेंस्ट है उसमें हम सब हर तरह के लोग जो हैं वो इसके जंग में शामिल हैं और खास तौर पे जो हमारा नौजवान तबका है वो उसको एक हरावल दस्ते के तौर पर तैयार करना है, क्योंकि वो कल के यही लोग जो हैं वो लीडर हैं और इन्होंने ही आगे मुल्क की बागडोर संभालनी। नैब हुकाम के मुताबिक रवां साल 21,000 से ज्यादा दरखास्तों पर 421 इंक्वायरियां और इन्वेस्टिगेशंस की गई। 299 मुल्जमान को गिरफ्तार करके 5.5 बिलियन रुपए की रकम बरामद करके सरकारी खजाने में जमा कराई गई। सीनियर कानूनदान माहिर इकबाल सरगाना के मुताबिक नैब कोर्ट में 90 केसेस जेरे समाअत हैं। करप्शन और इख्तियारात से तजावुज करना, और अब तो नैब प्राइवेट अफराद के खिलाफ भी जो है कार्रवाई कर सकती है। तो अभी हमें जनूबी पंजाब में जो है नैब की 2 कोर्ट्स बन चुकी हैं, नैब कोर्ट 1, नैब कोर्ट 2। वाक के दौरान तलबा ने इस अज़म का इजहार किया कि वो करप्शन के खिलाफ इदारों का साथ देंगे। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा करप्शन हो रही है, इसलिए हम सब इकट्ठे हुए हैं कि करप्शन को खत्म किया जाए। आज का दिन करप्शन के खिलाफ मनाया जा रहा है ताकि हम करप्शन का खात्मा कर सकें और पाकिस्तान को साफ बना सकें। नैब हुकाम का कहना था कि करप्शन के नासूर ने मुल्क की जड़ें खोखली कर दी हैं, मगर अब अवाम जाग चुकी है। जल्द मुल्क करप्शन फ्री होगा और करप्ट अनासिर जेल की सलाखों के पीछे होंगे। कैमरामैन अजीम शहजाद और साथी रिपोर्टर इमरान नवाज के साथ यासिर मजीद, मुल्तान। गरीब अब ठंड में नहीं ठठरेगा। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान ने एहसास बाजार के बाद एहसास दीवार का इफ्तिताह कर दिया है। मुखय्यर हजरात के तावन से गरीब शहरी में मुफ्त गर्म कपड़े तकसीम किए जाएंगे। मुल्तान इंतजामिया का अहसन इक़दाम। डिप्टी कमिश्नर ने सनतजार रोड पर एहसास दीवार का इफ्तिताह कर दिया। गरीब बच्चों और मजदूरों में कपड़े तकसीम किए। डिप्टी कमिश्नर का कहना था एहसास दीवार पर गरीब अफराद को गर्म कपड़े मुफ्त फराहम किए जाएंगे। आपको पता है कि ये मुस्तकिल चीजें नहीं लग सकती, इसमें भी एनजीओ ने हमसे ताउन किया है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हमारा उसकी कंट्रीब्यूशन है। हमारी कोशिश तो ये है कि ये जितना मैक्सिमम अरसा चल सकता चले, लोगों की सपोर्ट है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं है। तो जैसे जैसे लोग दर्द दिल रखने वाले इसका हिस्सा बनते जाएंगे, इसका ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक अवामी फलाह बहबूद पहली तरजीह है। रोजाना 500 से ज्यादा अफराद को कपड़े फराहम किए जाएंगे। कपड़े लेने वाले अफराद का कहना था कि मजदूर रोटी पूरी कर ले, यही बड़ी बात है। गर्म कपड़े मुफ्त देना बेहतरीन अमल है। आम आदमी जो मजदूर तबका है वो जो है ना बाजार से महंगे कपड़े वगैरह, सर्दियों के जर्सियां वगैरह, कोट वगैरह नहीं खरीद सकते। ये काम जो इमरान खान ने, हुकूमत ने ये जो प्रोग्राम बनाया है, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है। डिप्टी कमिश्नर का मजीद कहना था कि मुखय्यर हजरात अपने मलबूसात गरीब अफराद को देने के लिए दीवारे एहसास पर रख सकते हैं। सिविल सोसाइटी इस कार्य खैर में बढ़ चढ़कर हिस्सा डाले। मुल्तान में सर्दी कम पड़ती है, मगर जब पड़ती है तो खून जमा देती है। इंसानियत की जानिब से एहसास दीवार कायम की गई, जहां पर अब ये कपड़े गरीब शहरी मुफ्त हासिल कर सकेंगे और मुल्तान की सर्दी से महफूज रह सकेंगे। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ तैयब सैफ, मुल्तान। डेरा गाजी खान में सर्दियों की आमद के साथ खुश्क मेवाजात की मांग बढ़ चुकी है। कलमा चौक पर खुश्क मेवाजात की दुकानों पर खरीदारों का रश लग गया। शहरी गर्मा गर्म मूंगफली, काजू, पिस्ता और अखरोट की खरीदारी करने में काफी मसरूफ हैं। मजीद इस रिपोर्ट में देखिए। जी बिल्कुल, सर्दियों की आमद के साथ ही खुश्क मेवाजात की जो मांग है उसमें इजाफा हो जाता है। खसूसी तौर के ऊपर मूंगफली मार्केट में गर्मा गर्म मूंगफली जहां बनाई जा रही है, वहीं उनके शुदाई जो है, इनके चाहने वाले जो है वो इनकी खरीदारी के लिए मार्केटों में पहुंचना शुरू हो चुके हैं। गर्मा गर्म मूंगफली गर्म तपती रेत में बुनी जा रही है, उसके बाद कस्टमर्स को यहाँ पर फरोख्त की जा रही है। ड्राई फ्रूट्स की बात की जाए तो अखरोट हैं, बादाम हैं, काजू हैं और दीगर जो यहाँ पर खुश्क मेवाजात हैं उनकी मांग भी सर्दियों में बढ़ जाती है। शहरी खरीदारी करने के लिए पहुंचते हैं। बात करते हैं, सर क्या कहना चाहेंगे, सर्दियों में खुश्क मेवाजात की जो मांग है वो बढ़ जाती है, मूंगफली भी काफी ज्यादा फरोख्त होती है, शहरी खरीदारी करने के लिए आते हैं, आप खुद भी यहाँ खरीदारी करने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे? सख्त सर्दी और खुश्क सर्दी के मौसम में यकीनन ड्राई फ्रूट किसी भी नेमत गैर मुतबर्रिका से कम नहीं है और बढ़ती हुई कीमतों ने यकीनन हम जैसे मुतवस्सित तबके के लोगों की कमर तोड़ी हुई है। लेकिन अपने घर के लिए, अपने दोस्तों के लिए हम ये समझते हैं कि ड्राई फ्रूट और उसमें मूंगफली स्पेशली
बहुत अहमियत की हामिल है। दोस्तों के साथ बैठना, गपशप करना और वक्त गुजारी के लिए मूंगफली का इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है। सेहत के लिए जहाँ तक ताल्लुक़ है ड्राई फ्रूट बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन चूँकि मौजूदा हुकूमत ने भी इस सिलसिले में कोई काबिल ज़िक्र कारगुजारी नहीं की और ड्राई फ्रूट इंतहाई महंगे हैं और उनकी कीमतों को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको नीचे लाया जाए ताकि आम और मुतवस्सित तबके के लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। बिल्कुल इससे मुस्तफीद हो सकें शहरी, और ख़ास तौर के ऊपर मार्केट में दुकानों पर रश भी आप देख सकते हैं। बड़ी तादाद में शहरी हैं जो ड्राई फ्रूट्स की खरीदारी कर रहे हैं और शहरियों का रश लगा हुआ है। सही आशिर इशफाक, आपका शुक्रिया। दुनियापुर में प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस की सतह पर खेलों को फरोग देने के लिए 3 रोजा स्पोर्ट्स गाला सज गया है, जिसमें मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले भी जारी हैं। हुकूमत पंजाब की तरफ से दुनियापुर में 3 रोजा स्पोर्ट्स गाला सज गया। इब्ने सीना स्कूल और कॉलेज में सजे स्पोर्ट्स गाला में क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, दौड़, रस्साकशी, डिस्क थ्रो और दीगर खेलों के मुकाबले होंगे। स्पोर्ट्स गाला का इफ्तिताह चेयरमैन बल्दिया दुनियापुर फहद नूर खान जोइया ने किया। साबिक सिटी नाजिम रफीक शाह बुखारी भी उनके हमराह थे। इब्ने सीना कॉलेज के प्रिंसिपल सैयद आसिम बुखारी का इस मौके पर कहना था कि तालीम के साथ खेलों की सरगर्मियां भी जरूरी हैं। हमने गवर्नमेंट की हिदायत की रोशनी में अपने कॉलेज इब्ने सीना कॉलेज दुनियापुर में 3 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला का एहतमाम किया है ताकि सेहतमंदाना सरगर्मियाँ पैदा हो सकें। आज इफ्तिताही तकरीब है और 3 रोज़ा गेम्स के इनाकात के बाद आखिरी रोज़ इख्तितामी तकरीब में जीतने वाली टीमों को इनामात से नवाजा जाएगा। खेलों में शरीक तुलबा का कहना था कि खेलों के ऐसे मुकाबले कम से कम साल में एक बार जरूर होने चाहिए। हुकूमत का ये बहुत अच्छा इकदाम है। जहां पर खेल के मैदान आबाद होते हैं वहां के अस्पताल वीरान होते हैं। इब्ने सीना कॉलेज और स्कूल्स ने जो है वो तालीमी मैदान में जो है कि हमारे दुनियापुर शहर में तारीखी जो है वो किरदार अदा किया है। ऐसे ही जो है वो इन्होंने खेल ये स्पोर्ट्स गाला का जो इनकाद करके भी जो है ये दुनियापुर में एक तारीख रकम की है। नौजवान खिलाड़ियों ने मुतालबा किया कि खेलों के इन मुकाबलों से टैलेंट तलाश करके कौमी सतह पर भेजा जाए ताकि वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। कैमरामैन समीउल्लाह अलवी के हमरा मोहम्मद याकूब ताहिर, रोही, दुनियापुर। इसी के साथ में स्टूडियो से फिल्म कितना